सही। सो तो अगर देखा जाए तो ये भी कहाँ से शुरू हुआ है? अल्लाह के इंट्रोडक्शन से, सूर्य सूर्य मुल्क। हम्म। कौन सा नंबर है इसका, सूर्य मुल्क का? सूर्य मुल्क। ओके, लेट मी चेक। नंबर नहीं दिए हुए इसमें, तो मैं यहाँ पे से देख के देती हूँ। 70 समथिंग, 72 है कि 78 है? ऑलवेज मुल्क 67, सॉरी, ठीक। 67 है। सही है। सही। सो तबारकल्लज़ी, so he is blessed, right? Subhanallah, I don't know, like, I mean, all the blessing is from him, so he is the blessed. It's like a very new introduction, बिल्कुल। right? The blessed is he, and all the blessing is from him. So I'm not too sure, like, कभी तफसीर पढ़नी चाहिए इसकी। तो इसको जब बोला बोला यानी कि इंट्रोडक्शन है, उस बाकी में तो अपने नाम और एवरीथिंग he introduced, but over here he is saying he is blessed, right? So what can be the reason of him saying that he is a blessed one? मतलब हम उर्दू में उसको बरकत का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जी जी, एग्जैक्टली वो वही है। वो रूट वर्ड वही है। हाँ, बरकत। हम्म। सही। जी जी, एग्जैक्टली वही है, right? हम्म, And he is saying he is the बरकत वाला, he is हम्म, like the blessed one. जी। In the hand, biyadihil, in the hand is all the kingdom, like हम्म, in his, like he controls everything. In the hand doesn't mean like he has a hand and he ये just, या बिल्कुल वो yeah, इस तशबीह के तौर पे ये तशबीह के तौर पे। बिल्कुल। and and then the rest is like के वो he is वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। सो बेयदिही होना या कुल्ले शैइन कदीर होना is the same thing, right? But the new word over here is like introduction में अल्लाह सुब्हाना ताला की, जो कि आप कहते हैं जब अल्लाह आ जाए तो you have to be really like, but 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 his introduction many times in a different way, right? डिफरेंट, बिल्कुल Yeah, बिल्कुल। क्योंकि हम मुल्क भी मालिकी यौमिद्दीन and Malik of everything, we know that kingdom is his. Ala kulli shayin qadir we are very familiar with, but tabarakal is like a new introduction, right? And इसको देखना होगा, इंशाल्लाह मैं देखूंगी, and if I find something like why he has introduced himself as a tabarakallah, he is like, he is blessed, we know that, right? All the जी जी। blessing we get is from him, right? Like what blessing we can identify, I mean, how many blessing और we can identify, like it's like everything, एवरीथिंग एग्जैक्टली। everything. We can't even think of like how many we are utilizing on a daily basis, and still we are short on thanks, right? अल्लाजी खलकल मौता, अच्छा ये बड़ा अच्छा है। he created a mouth and a hayat. Okay. Like, I mean, you are अलग। philosophical. या। First is a mouth and then is a hayat. What might be the reason for that? So that's another question. So this is like full of question, and we might need to go back, inshallah. So one is like why he introduced himself as a tabaraka. It's like a new introduction, right? And why he is saying maut before hayat. Like in our realm, right? Like जो हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि hayat comes and then maut comes. But he is saying he is the one who created the maut and the hayat. इसमें अगर हम फिलोसफिकली अंदाज से सोचें, जैसे अभी एक जैसे हम बर्थडे मनाते हैं ना, जी
और उसके बाद फिर जो भी जिंदगी है 60 70 80 साल की जो भी है वो चल रही है, उसके बाद Yeah, फिर डेथ आ जाती है। लेकिन वो सोचिए जो बर्थ डे से पहले वाला जो वो था, वो उस फेस को क्या कहेंगे? yeah, that was nothing. Yeah, दैट वाज नॉट हयात। हाँ, that सो was not. हयात और हयात का अपोजिट फिर वो डेथ ही आ जाता है, या अच्छा मौत का मतलब अ, जैसे अगर हम देखें कि वो नींद को भी मौत का ही एक जो हम सो Yeah, जाते हैं yeah, yeah. उस It is a moth. On a daily basis, we स्लीप die, and on a daily या, basis, या, we, yeah, या, तो मेरे ख्याल yeah. में जो आप सोच रही हैं कि जी मौत को बहुत पहले आया, तो मैं उस फेज का जिक्र शायद बताया कि पहले वो है, Mm-hmm. And जिंदगी नहीं है, फिर जिंदा फिर पैदा हुए, उसके बाद फिर so इसकी अगर आप 2-3 तफसीरें देखेंगे तो, फॉर एग्जाम्पल, वी वर अरवा, राइट? बिल्कुल हाँ। किसी तो फॉर्म में थे, जो भी जिसको वो जो भी हम कहें, किसी फॉर्म में थे, रूह यस, या जो वट एवर। या एंड इन जन्ना, कुरान में है इसके, हम अहदे अलस जो है, हम सब ने ओथ ली अल्लाह के सामने, एंड देन जब हम ट्रांसफॉर्म होके यहाँ ट्रांसफॉर्म हुए और फिर हमें यहाँ भेजा गया, राइट? We were all there. Okay, we were all created. We are, maybe over there we were created from nothing as well, right? बिल्कुल। And then he started the hayat. He sent every single arwa over here. अच्छा, आपसे आपसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, एक हमने बड़े मजे की, तो हमारे टीचर बता रहे थे, एक नया कोर्स शुरू किया है, तो स्कॉलर है, वेरी वेल रेड एंड वेरी वेल नोन ओवर हियर। मुझे थोड़ा सा, मैंने किसी और मकसद के लिए, गलत मकसद के लिए उनको ज्वाइन किया, बट आई एंजॉयड द फर्स्ट लेक्चर। तो उसमें वो जो डिफरेंट ग्रुप है ना, खारजी, मुतज़ली एंड एवरीथिंग, एंड माय क्वेश्चन वाज लाइक, डू दे एग्जिस्ट टुडे? एंड they started right in the ahead of Hazrat Ali रजी अल्लाह ताला अन्हा, राइट? वहीं से फितने शुरू हो गए थे, राइट? यू नो दैट। और तो जी। उसमें एक ग्रुप जो है मुतज़ली हो गया था, एक ही हो गया था, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ, व्हाई डू वी रीड दैट? क्योंकि अभी तक उनके थोड़े बहुत आसार बाकी हैं, राइट? नॉट इन द फॉर्म, कोई मुतज़िली ग्रुप नहीं है अब, ना खवारजी है, बट उनके आसार अभी तक पाए जाते हैं। सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट था, एक थे इस्माइल अशरी, वो मूसा अशरी की क्लैन से होते थे, ठीक? एंड मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, यू नो, ही वाज अ सहाबी, एंड ग्रेट 5 के सहाबी थे, जिनकी क़िरात को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके चुपके उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाया करते थे और सुना करते थे। ही वाज सो ब्यूटीफुली, लाइक ही वाज सच अ ब्यूटीफुल रिसाइटर। अच्छा, तो ये जो इस्माइल अशरी थे, जाहिर है जब पैदा होते होते लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करा होंगे, तो एक ग्रुप ज्वाइन किया है, he was the scholar, I think he was like after 300 years or something, right? Or 150 years after the death of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he was there, and then somebody brought him a question, a बड़ा interesting question है उसमें, and I think it is proven by the hadith. They say that के उनके पास था कि अल्लाह is forced to do the justice, right? They use the word forced to, nauzubillah, like we cannot force Allah to do anything, right? If बिल्कुल। it's his will, he whatever he wants to do, right? We have to submit. So उनका कहना था Allah is forced to do the justice, right? This is very very strong belief. So उनके डिस्कशन में, of course स्कॉलर डिस्कशन में ये आया कि अगर he is forced to do the justice, the kids who die, जो बच्चे मर जाते हैं, right? जो आदमी एडल्ट हो जाता है और ईमान रखता है और वो डाई करता है, तो वो जन्नत में जाता है, ठीक है? एंड जो बंदा डिसबिलीव करता है, ही इज नॉट अ बिलीवर और एडल्ट हो गया है, वो दोज़ख में जाएगा, राइट? शिर्क करने पे या डिसबिलीव करने में। तो व्हाट अबाउट द बच्चा जो जो बड़ा ही नहीं हुआ, राइट? उसके लिए नथिंग, राइट? उसका कोई टेस्ट नहीं है, लाइक, एंड दिस इज लाइक डिफरेंट हदीस ओवर देयर कि उसका कुछ नहीं होगा, ना जन्नत ना दोज़ख। देन
then the discussion came कि अगर बच्चा जन्नत में नहीं जाएगा तो he can contest that कि भाई मुझे एडल्ट क्यों नहीं किया, right? ये तो मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ क्योंकि मुझे तो भी जन्नत में जाना था, तो this is not a इंसाफ with me, right? तो अल्लाह सुब्हान ताला उसको फरमाएंगे कि भाई अगर तुम एडल्ट होते तो तुम जो है डिसबिलीवर होते, so you are better off not going into the दोज़ख. सही है? Then the person who went into the दोज़ख वो ये कहेगा कि फिर मुझे क्यों बड़ा किया, right? It was like it captured my, like the whole lecture I don't remember, but this like we haven't studied in that manner. So जो इस्माइल अशरी थे उन्होंने सिलेबस ही ले लिया, लाइक वो 2 हफ्ते के लिए खाना नशीन हो गए, क्या कहते हैं वो, लाइक सॉलिट्यूड में चले गए, कमरे के अंदर बंद हो गए. पढ़ना उसको 2 हफ्ते के बाद निकले, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ग्रुप को छोड़ रहा हूँ, we have to submit. He got the sense out of it, right? उन्होंने कहा like I mean this किस्म के discussion like it doesn't suit the Allah subhanahu wa ta'ala's shan, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala wants, he wants, like he can do it, and we just have to submit. We don't have to come into these kind of discussions. So it was very interesting one. But this is like good, and उनके बहुत सारे ऐसे, यानी कि if you go in detail बहुत सारे वो मिलेंगे, but I think it's normal people के जहन में अगर डाल दो तो वो भी कहीं वो अगर इसमें आ जाए, उसके जहन में क्या आ जाए कि अल्लाह इंसाफ पसंद है, अल्लाह इंसाफ. अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज जब ये बोल रहे थे और मेरे जहन में वो हदीस आई कि अल्लाह ने अपने ऊपर नाइंसाफी को हराम कर लिया है. सही, दिस इज अ हदीस कुदसी. So nobody can deny that insaf is insaf, right? We can, but we still hope for his raham. Even the Prophet would go in the Jannah with his mercy. बिल्कुल. Right? So it's interesting. It's going to be very interesting class. मैं share करूँगी बड़े अच्छे मजेदार वाक़े. But it's good to join the scholars. They have a lot to say and lot to teach. Alhamdulillah. दूसरी बात क्या कही थी उन्होंने कि no, there was like one question, a stupid question मेरा भी था कि जो है वहाँ यहाँ लाइक जो रेशो बढ़ा है हमारी आबादी का, पहले जमाने में ये था कि एक स्कॉलर होता था, मस्जिद में बैठ जाता था और लोगों को पढ़ाता था, एंड देन लाइक एवरीबडी इज वेल रेड, लाइक वेल नो, इस्लाम को बहुत जानता है. तो माय क्वेश्चन ये कि जो स्कॉलर्स का रेशो, जिस तरह से स्कॉलर का रेशो बढ़ रहा है, जिस तरह आबादी बढ़ रही है, इज इट जस्टिफाई कि एवरीबडी वुड गेट द नॉलेज? आई डोंट थिंक दैट्स द केस. एंड वो नॉलेज जो है वो कम ही होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है. जबकि पुराने जमाने में एवरीबडी यूज्ड टू गेट सम काइंड ऑफ अ नॉलेज. So that's not the case these days, although the like है, लेकिन इंटरनेट जो है अब वो कादियानियत के टैक्स से भरा हुआ है, शियत्स के टैक्स से भरा हुआ है, राइट? सुन्नी के भी डिफरेंट ग्रोह हैं जिनके अपने अपने ख्यालात हैं. Where the person go for the right information, right? So ये कहना ना कि इंटरनेट आ गया है and problem is solved, no, नहीं वो बहुत बढ़ गया. मतलब उसमें ये है कि आपके पास इतने ज्यादा व्यूज होते हैं कि आप समझ में नहीं आता कि किसका सही है. अपनी खुद हमारी नॉलेज ऐसी नहीं है कि हम इतना बारीक बीनी से वो कर सकें. लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाती है. मैं मुझे भी फील होता है कि बाद जो नए बच्चे जो हैं, अगर इस तरह के जब वो मुख्तलिफ एक ही टॉपिक के मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन या मुख्तलिफ ओपिनियन सुनेंगे तो उनके लिए जरा मुश्किल हो जाती है चीजों को. एग्जैक्टली. सो कुछ बच्चे 100 वो नहीं बता रहे थे मुझे, कोई और स्कॉलर से मैंने सुना कि अमेरिका में एवरी ईयर 100,000 यानी कि 1 लाख मुसलमान जो हैं वो अपना रिलीजन चेंज कर रहे हैं.
और हम ये इस बात में खुश हो रहे हैं कि देखो वो एक आध बंदे ने शहादा ले लिया, उसका वीडियो बना के वो लोग यूट्यूब पर डाल देते हैं, देखो लोग मुसलमान हो रहे हैं। बट दिस प्रॉब्लम nobody is tackling, right? So there has to be done something anyway. जो चले, तो ये एक था कि मौत से पहले हयात आई, लाइक बात समझ आती है, बिकॉज जी। वी वर नथिंग एंड वी आर नाउ समथिंग, एंड देन वी विल गो बैक टू नथिंग, मट्टी हो जाएंगे, एंड देन ऑन द डे ऑफ द जजमेंट वी वुड बी फिर उठाया अगेन जाएगा। हयात होगी। सही। जी। लेकिन ये हयात अल्लाह सुब्हाना तआला ने क्यों लिखी है? लियब्लुवकुम, टेस्ट के लिए कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी डायरेक्ट सूरा कि आपको अब अल्लाह ने अपने इंट्रोडक्शन के बाद फौरन हमारा काम बता दिया कि वी आर रीजन, इन अ पर्पस बता दिया बेसिकली। पर्पस बता दिया। ठीक, तो इसको लफ्ज पर्पस को लिखें इसमें, यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है जिंदगी या का। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ हमारा जो भी है कि भाई कि अल्लाह हमें पैदा क्यों हुए हैं, वो ना जितना यस, ऑफ लाइफ। या। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। हुवल अजीजुल, he is mighty and he is forgiving, जी। right? So really, इंसान, yeah, just think about इंसान को अपना ओरिजिन, आई मीन अगर मौत से हयात आई है और अपना ओरिजिन जान ले इंसान, राइट, उसके बावजूद लाइक इतने छोटे से, इतनी छोटी छोटी पावर होने के बाद भी इंसान कभी कभी अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है। Isn't that the case? बिल्कुल। तो उसी को तो वही तो है ना शैतान, मतलब शैतान के कभी जरा शैतान को भी जरा डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। शैतान के जो है वो उसके उसमें फंस जाता है या खुद अपने आप को उसी में डाल लेता है, तो वो फिर होता है। लेकिन ये जो पूरी जो आयत है दूसरे नंबर की जिसमें, तो उसमें अल्लज़ी खलक़ल मौत है, तो वो मतलब बड़ा क्लियर एक ऑब्जेक्टिव बता दिया कि मौत और जिंदगी ईजाद की ताकि लोगों को आजमा कर देखे या लोगों को या कि उसमें अमल या उनका कि अमल कौन क्या बेहतर अमल करने वाला है। और फिर कौन। आखिरी जो आपने पढ़ा उसमें कि हुवल अजीजुल गफूर, मतलब वो अजीज मतलब माइटी भी है जो आपने कहा, और दरगुजर करने वाला भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली, बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये यस, कि क्योंकि आई थिंक देयर इज एन अदर हदीस जो जो हमारी जो साथी थी, जो एक क्लास में हमारे साथ थी, और टीचर ने वो हदीस पढ़ी कि अगर ये अल्लाह की रहमत ना हो, यानी कि यानी कि अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो जो जो कुफार होते हैं वो एक कतरा पानी को भी तरसते हैं। यानी कि अल्लाह की जो रहमत है इट्स लाइक कॉमन ऑन ऑन बोथ डिसबिलीवर और बिलीवर, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अगर ये, हाँ नहीं, ये दुनिया अगर वैल्यूएबल होती, अगर इस दुनिया की वैल्यू एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, अगर होती, अगर वैल्यू होती एक मच्छर के पर के बराबर, यानी कि पूरी दुनिया like with all the gold and all the diamonds and everything is equal to मच्छर का एक पर। just imagine मच्छर का पर उसके बराबर होती, इतनी वैल्यू भी होती, तो अल्लाह सुब्हाना ताला डिसबिलीवर को एक कतरा पानी भी ना देते। तो वो बंदी जो है ना, इसको कहने लगी कि लाइक हाउ कैन यू से दैट अबाउट अल्लाह सुब्हाना ताला कि अल्लाह सुब्हाना ताला एक कतरा पानी भी नहीं देते। She didn't understand this hadith is talking about the value. So it's not about like who is getting what, right? They are getting with the raham of Allah subhanahu wa ta'ala. But the more they get, and if some disbeliever have more, and people do that question कि मैंने क्या किया, like this is not insaf. They are talking about the insaf here, but the insaf is on the day of the judgment. Over here Allah subhanahu wa ta'ala give more and more and just take more and more. It's everything is a test.
राइट। लेकिन अगर दुनिया वैल्यूएबल होती और इतनी वैल्यू भी होती, इतनी कम वैल्यू भी होती कि मच्छर का एक पर, तो उस वैल्यू की बिना पर अल्लाह सुब्हान तआला किसी कुफार को एक कतरा पानी भी नहीं देते, बट इट डजंट हैव अ वैल्यू, सो एवरीबॉडी इज गेटिंग एवरीथिंग। जस्ट डू योर टेस्ट, राइट। समझ आई वो हदीस? आप जी देख जी लीजिएगा मच्छर के पर को टाइप जी। करके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो Yeah, but she misunderstood that. She's questioning on the second part. She's not like understanding the value part. मिसअंडरस्टूड किया कि ना, मतलब अल्लाह के नजदीक, मतलब वो अल्लाह के नजदीक अगर उस दुनिया की या जमीन की या जो भी है इसकी कोई वैल्यू होती कि जी, तो वो सिर्फ मुसलमानों को या उसके मानने वालों को देते नहीं, अल्लाह ने सबको दिया हुआ बेसिकली। अल्लाह ने सबको दिया हुआ है, exactly. So, and the value, he values the जन्नत, right? बिल्कुल। और फिर जो वैल्यूएबल लोग होंगे, जो like they deserve, the deserving people होंगे, they will get the valuable thing, right? Even like 1% वर्स 1% रहमत जो है वो आसमान से लेकर जमीन तक पूरे फैली हुई है अल्लाह की। दिस इज अ हदीस कुदसी अगेन, राइट। ये अल्लाह की जो है 1% रहमत जो है आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह फैली हुई है। ओनली 1%, 99% इज फॉर जन्नत के बाशी, राइट, जन्ना में। कैन यू इमेजिन द 99 वर्सेस 1? और वो 1% हम पूरी जानते भी नहीं है कि बिल्कुल हाँ। हमारी बॉडी, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कितनी रहमत है, लाइक हमारा किडनी कैसे काम कर रहा है, लिवर कैसे काम कर रहा है, लाइक इट्स ऑल रहमा, राइट। And we don't even know that, we cannot like understand this rahmat, this mercy, which is only one, like a tiny, like it's not tiny in our imagination, it's like big, very very big. How about 99? Yeah, may Allah just give us the hidayah so we just like go directly into Jannah, inshallah. I mean, Jamian. Okay, next. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Again, this is Allah introduction in half of the ayah. कि अल्लाह ने आसमान को 7 हेवंस में बनाया, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, मा तरा, राइट, नॉट, बल्कि एक स्टेटमेंट है जो नेगेटिव से शुरू हुआ है, मा तरा, यू डोंट सी, फी खल्क़ रहमानी, अल्लाह की खल्क में, अल्लाह की जो क्रिएशन है उसमें क्या नहीं देखते, जो कि बहुत रहमान है, राइट। देन अभी हम उसका रहमत का जिक्र कर रहे थे, ही इज अ रहमान। मिन तफावित, तफावित कहते हैं फॉल्ट को, अल्लाह की किसी क्रिएशन, यानी कि आसमान का जिक्र किया है, आसमान की तरफ ही नजर उठा के देखें, राइट, या किसी और क्रिएशन की तरफ भी, उसमें कोई फॉल्ट मिलेगा हमें? फर्जिअल बसरा, हमारी आंखें जो हैं वापस लौट जाएंगी बगैर फॉल्ट को हासिल, कोई फतूर एंड तफावत, सिमिलर मीनिंग, कि अगर हम अल्लाह की क्रिएशन में वी विल नॉट फाइंड एनी तफावत, हमारी आंखें जो हैं अगर ढूंढने की तलाश की कोशिश भी करेंगे तो वो वापस लौट आएंगे, लेकिन कोशिश तो करें, राइट। आई मीन इस आयत को पढ़ के फॉल्ट निकालने की कोशिश करें तो हमें क्या नजर आएगा? उस क्रिएशन की ब्यूटी ही नजर आएगी। बिल्कुल। आसमान को देखेंगे, ब्यूटी, सितारे हैं, ब्यूटी, राइट, everything is a beauty, right? Like अच्छा। our teacher was just talking about the moon, right? He lives in a countryside. एक अरबी का एक किसी कोई तफसीर में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ये बताया कि 7 का जो लफ्ज है अमूमन, मैं पहले ही जिक्र करता हूँ, वो अमूमन वो बहुत का, मतलब या
मैनी या कसीर की उसमें होता है। और जो बाद 10 का था, अशर अशीर जो कहते हैं 10 का, वो हाँ। फ्यू के लिए होता है कि 10 दफा तो कहा है, तो मतलब वो तो कह लेंगे ओ अरबी, अरबी में 7 का मतलब जो एक आम लोग बोलचाल में यूज करते हैं उसका मतलब मल्टीपल बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ओके। 10 का लगता है तो फ्यू में होता है। तो मैंने कहा वाओ। अच्छा, मतलब ये भी कहीं कहीं आपको ना मिलेंगे कुछ 10 के 10 का कोई आएगा तो उसको उस जो मैं बता रहा हूँ उससे सोचिएगा क्या कसीर और कलील के उसमें या फ्यू के उसमें, ठीक है। हाँ, लेकिन लेकिन वो जो अल्लाह ने कहा है कि वो 10 यानी कि एक एक बाली उसके 10 दाने, उसके साथ वो आखिर में 7 हो गया तो फिर मजीद हो गया। मैं हाँ मल्टी उसमें। अच्छा एक और वर्ड यहाँ पे देखें, आप देखें अल्लाजी खलक समावात तबाकना, कि हाँ एक तो सात, सात समान, सात आसमान मल्टीपल भी कहते हैं, जो भी है वो तो जी जी आगे की जी। जो साइंस वो करेगी। फिर यहाँ पे ना फी खल्किल रहमान, हम्म। रहमान का वर्ड आ गया ना। जी जी जी। अच्छा अब मैं आप एक लिख ली, एक बायोलॉजी में दो टर्म्स यूज होती हैं, हम्म प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन लिख लें। इधर लिखने, हाँ। प्रोग्रेस। अच्छा, अर रहमान को डिफाइन कर रहे हैं। नहीं अभी से हाँ, रहमान प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। हम्म। अच्छा एवोल्यूशन। ठीक है, और एक आती है और हम यूज करते हैं रहीम, ओके। हाँ रहमान हो अक्सर वहां पे रहीम भी आता है, उसकी है एमरजेंट एवोल्यूशन। बायोलॉजी के उसके अंदर ना दो एवोल्यूशन के वो हैं। हम्म। तो कहीं मैं पढ़ रहा था तो उसमें मतलब उन्होंने रहमान और रहीम के जो एक तो हम मतलब अमूमन करते हैं डेवलपमेंट या अल्लाह की रहमत उसमें, तो उसमें उसको उन्होंने इस तरह भी किया था कि जब आप जिंदगी को देखें अमूमन जो 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 अर्थ जो जो लाइफ है या जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है बायोलॉजी के सेंस में से देखें, चाहे वो इंसान का बनना है या जानवरों का है या पौधों का है, जो भी है, तो वो एक हल्के हल्के प्रोग्रेसिव उसके अंदर आ रही होती है बनते हुए, सही। ठीक है। हम्म। और रहीम उसमें ये होता है कि कभी एकदम से कोई खल्क होती है वो अपनी अपनी वो चेंज कर लेती है शेप। सही। तो वहां पे मतलब उन्होंने ये रहमान और रहीम का वो किया। वैसे तो हम अमूमन हम लोग जो पढ़ते हैं रहमत के ही उसमें लेते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये दो लफ्ज दे दिए, कभी मौका लगे तो इसको और वो कीजिएगा, मैं हाँ, आजकल पढ़िएगा। इसके ऊपर भी वो देख रहा हूँ। हाँ। मुझे जो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन पता चली ना, हम्म, रहमान इज लाइक जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, हम्म, राइट। सो रहमान, उसमें उन्होंने सिखाया था, बड़ा अच्छा स्कॉलर है वो भी। ही सेड कि एक एक बड़ा सा बॉल ले लो, बड़ा सारा बॉल, और उसको फुल भर दो किसी चीज से, हम्म, राइट। लाइक आई मीन उस बॉल के कोई भी पार्ट निकाल लो, राइट। इट्स लाइक अ बिग सेट, और उसके अंदर जितने भी हैं वो रहमत, यानी कि जो रहीम इज लाइक अ सबसेट, लाइक इज अ अमद, राइट। बट द बिग बॉल इज लाइक ऑल रहमान। रहमान। तो इट्स लाइक अ सबसेट, और उसका उसका क्या होता है, सुपर सेट, और लाइक समथिंग लाइक दैट। बट ही इज बोथ, बट या। तो ही इज, वो ये कहते हैं कि दुनिया के लिए रहमान है, लाइक आई मीन दिस सबसेट इज फॉर एवरीबॉडी, बट this individual rahmat, maybe it would go for the mu'minin, and that's another. But this is like a really good, like new thing for me, progressive and emergent. या इसमें देखे ना जो हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम Right. मालिक यौमिद्दीन। Yes. Yes. So yeah, every day, like I mean, there would be a difference definitely, right? या या दोनों का रूट वर्ड एक है, but हाँ, again, थोड़ा सा फर्क है हाँ, जो उसमें, ठीक है चलें आगे चलते हैं। हाँ, मतलब एक डिस्कशन था तो मैंने आपको yeah. No, that's like people. This is the most discussed word. What is the difference between Rahman and Rahim, right? तो जबकि एक ही रूट वर्ड के से है। तो So उसमें ना उसमें यही है कि जब आप कभी आप ये सोच के ना देखें कि मैं रहमान को
एवोल्यूशन, उसको आप सिर्फ ये देखें कि जो आजकल की साइंस में प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन और उसमें क्या कहते हैं, क्या डिफरेंस है, और फिर आप उससे सोचें, लिंक करने की कोशिश करें या ज़हन में लाएं कि अच्छा अगर मैं सोचूं समझूं। चलिए आगे चलते हैं। सही, इंशाल्लाह। तो आपकी आंखें, आपकी बसारत जो है वो वापस लौट जाएगी, राइट? लाइक अगर ये हमारी बसारत है, तो हमारी बसारत तो रीच कर ही नहीं सकती। लाइक सितारों को हम छोटा देखते हैं, जबकि सितारे बहुत बड़े हैं, राइट? तो हमारी बसारत तो वैसे इस काबिल ही नहीं है कि अल्लाह की क्रिएशन में कोई फॉल्ट लेके, जब सितारों तक हमारा एक्सेस ही नहीं है, हाउ कैन आई गो एंड जस्ट लाइक फाइंड द राइट? लाइक हमें अपनी एबिलिटीज को देखने, सुनने, समझने की एबिलिटीज को भी समझना चाहिए, राइट? एंड वॉट एवर वी हैव, उसको उस लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो इसका पर्पस हमें समझ आ गया है, राइट? दिस इज अ वेरी क्लियर टेस्ट के लिए, राइट? एंड सुभान अल्लाह, कभी कभी लाइक हैरत होती है साइंसदानों पे, लाइक जो मार्स पे जा रहे हैं तो यहाँ पे जा रहे हैं तो वहां पे जा रहे हैं, आई डोंट नो। जो लोग भी इस तरफ कदम उठाते हैं, isn't it better कि इस दुनिया को बेहतर कर लें? अच्छा, इसमें भी ना जब आप मतलब बात वही है कि इल्म हासिल करना है, उसको बेहतर कर ले, ऑब्जेक्टिव या उससे ना। अब आप ये देखें कि हजरत इब्राहिम का जो वाक़या है, तो अगर उसको पढ़ें तो उसमें ये लगता है, मतलब जो उनको कि पहले उन्होंने कहा कि सूरज मेरा रब है, रब है, एग्जैक्टली। फिर चांद को कहा, फिर सितारों, मतलब इस तरह सारे उसमें ना आप ये देखें कि वो पूरा वो इल्म फल्कियात की तरफ रेफर कर रहे हैं। मतलब कोई ये थोड़ी कि सूर्य उठा के देख लिया, सूरज को एक दिन में थोड़ी, वो तो रोज नजर आता रोज देखे थे होंगे, सही। है। मतलब उस पर उन्होंने गौर फिक्र किया ना, एग्जैक्टली। तो वो पूरा का पूरा इल्म फल्कियात उस जमाने के लिहाज से जो भी है उसमें, मतलब मैं तो कभी जो सूरह जो इब्राहिम है या उसमें हजरत इब्राहिम के बारे में पढ़ता हूँ, जब उसमें ये वाली आयतें आती हैं तो उससे बड़ा एक मिलता है कि उन्होंने मुशाहिदा किया होगा उसका, जो भी किसी जो भी उस जमाने के टूल्स होंगे या जो भी अल्लाह ने उनको फराहम किए होंगे, कि उससे उन्होंने एक नतीजा अखज किया। उसके बाद फिर, क्योंकि नबूवत तो उनको बाद में मिली है ना, एग्जैक्टली, या ये थोड़ी हुआ कि ना पहले उन्होंने, अल्लाह ने उनको नबूवत दी, फिर उन्होंने कहा नहीं, पहले तो वो अपने सारे जो भी उनके पास, जो अल्लाह ने उनको इल्म जो भी वैसे बिफोर नबूवत जो अता किया हुआ था, वो भी वो सारे उन्होंने यूज किया। उसके बाद वो मुतमईन हुए कि नहीं ये नहीं है, फिर अल्लाह की तरफ आए कि मेरा तो रब वो है जो इन सब चीजों को पैदा करने वाला है, करने वाला है, एग्जैक्टली। फिर किसी वक्त उनको जो भी अल्लाह ने उनको नबूवत दी वगैरह। या दैट्स ट्रू। और इजराम फल्की उनका काफी, यानी कि आई एम नॉट टू श्योर कि कहाँ का रेफरेंस है, लेकिन उस वक्त बच्चे बच्चे भी बता सकते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इजराम फल्की की स्टडी उनकी, लाइक इजराम फल्की नहीं कहेंगे, वो क्या कैलकुलेशन करके दे कुड डिड्यूस एवरीथिंग। जी जी हाँ, उस जमाने में बहुत बहुत होता, अभी भी है, अभी भी बहुत ज्यादा वो चल रहा है। हाँ, लेकिन बच्चे से अगर पूछा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, लाइक प्रॉफिट, लाइक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा कि जाओ देखो इन लोगों का इल्म कहाँ पे है, तो बच्चों से पूछा जो कि खेल रहे थे कि भाई बताओ जिब्रील का है, तो उन्होंने कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ तीन हैं, मैं तो हूं नहीं और ये भी नहीं है, तो सही तीसरे तुम हो, तो हम तीन में से, लाइक दे कुड कैलकुलेट दैट, दे कुड कैलकुलेट इवन द अनसीन। सो दैट्स अमेजिंग। लाइक आई डोंट नो, लाइक अब हम जा रहे हैं, जो एआई आया फॉर एग्जांपल, अभी जो एआई देखा है, मेरे लिए तो बड़ी नई चीज है ये, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी इस्तेमाल करते होगे। जी जी तो इस अमेजिंग, लाइक वो कैलकुलेशन के बेस पे एल्गोरिथम लगाकर इट कैन डिड्यूस द थिंग्स। लाइक अभी तो खैर उसके तजुर्बे की स्टेट में है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें गलत बताता है, बट लाइक डाउन द लाइन 10 years के बाद इतना बहुत इम्प्रूव डिफरेंट, हो बहुत जाएगा कि इट वुड बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले मैं दम्माम में था ना, तो वहाँ पे वो
लेके गए हमें जो एक म्यूजियम वगैरह था, तो वहाँ पे तो, और उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी जहाँ पे बहुत सारी बुक्स वगैरह जो थी पुरानी सब रखी हुई थी उन्होंने। हम्म तो मैंने ये पूछा कि मुझे कोई ऐसी बुक दें, लुगत दें, जो जैसे जो जो मैं कुरान के जो 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 अल्फाज हैं, अरबी के जो अल्फाज हैं, उनकी डिक्शनरी मिल जाए अलग से ना, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कोई अच्छी ऐसी लुगत मिलना कि जो जिसमें थोड़ा इंग्लिश या उर्दू, इंग्लिश भी हो तो हम उससे कंपेयर कर लें ना। एक एक लफ्ज कुरान के तो इतने इतने जखीरा है अल्फाज का, ये जो बहुत सारे मायने होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना, जो जिस अरबी से मैंने बात की, मेरे कोलीग है वो भी जानने में उसमें सीनियर था, कहने लगा आप हम भी ना चैट जीपीटी से मदद लेते हैं, बजाय से कि आप किसी उसमें जाए, आप वो लफ्ज लिख के उसमें उसको उसका मतलब जो है ना यस यस तो मैंने कहा अच्छा चले। अच्छा, दूसरी जो चीज उसने ये बताई, वो वहाँ पे बहुत सारी उन्होंने म्यूजियम था तो बहुत सारे कुरानी आयत के रेफरेंस से भी चीजें दिखाई थी कि जमीन मुख्तलिफ आसमान है, या सू समंदर के बारे में, या जानवरों के बारे में, तो जो जो मुख्तलिफ आयातें हैं वो उसमें, और बहुत सारे कुरान के वो भी रखे हुए थे जिस जो बगैर एराब के होते, तो उसने कहा कि ये एराब, ये जेर जबर पेश लगना बड़ा जरूरी है हमारे लिए भी, क्योंकि हमें भी जरूरत he पड़ती did है the right इनको। thing, yeah, हाँ, he's saying the हमें भी right इनकी thing. जरूरत पड़ती है जेर जबर पेश की, मतलब बाज दफा। बहुत ज्यादा, बहुत हाँ, ज्यादा. तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, मैं तो समझता था कि अरबी है तो उनको हर चीज मतलब तो लिखी हुई है, कह लेंगे नहीं, हमें भी बाज दफा इन चीजों को हमें समझना पड़ता है Exactly. जेर जबर पेश क्या है, क्योंकि अल्फाज के जरा भी चेंज होने से, मतलब जेर जबर के चेंज होने से जरा सा भी ना वो चेंज हो जाता है। सूर्य कहफ मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम आपसे. अम्म, हाँ, किया था शायद, हाँ मुझे याद है कि बात हुई थी एक हफ्ते महीने पहले तकरीबन, हाँ। कि वो नहीं, मेरे ख्याल में इतनी पुरानी नहीं है. अच्छा। एक आया कि मैं निकाल देती हूँ आपको. सूर्य कहफ, बल्कि यहाँ से निकाल देते हैं, विच वुड बी द इजीएस्ट वे. इसका पेज नंबर याद कर लें, 562, राइट. वापस इस पे आ जाएंगे इंशाल्लाह. सो सूर्य कहफ है. आजकल कुछ ग्रुप जो है ना, स्पेशली यंग बच्चियों का ग्रुप मैंने शुरू किया हुआ है, और उसमें हम पढ़ा रहे थे. एंड सो सुभान अल्लाह, लाइक मैं ये समझती हूँ कि मुझे काफी हद तक ग्रामर आ चुकी थी, बट देन आई वाज स्टक ऑन अबसिर बिही व अस्मे, राइट. और मेरे टीचर 40 साल से वो हैं. and he said कि तुम किसी अरब से जाके अगर इस किस्म की बातें पूछोगी तो लाइक दिस इज लाइक रियली डिफिकल्ट थिंग्स, के इसको कहते हैं. ये जैसे अबसर है, हमने वो पढ़ा है ना कि ये फेले अमर होता है कि देखो और सुनो. नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है. ये है अबसर बेही वास में. इसके मतलब व्हाट अ बसारत, व्हाट अ समात, अच्छा। राइट. एंड मैं इस पे अटक गई थी. एंड दिस इज कॉल्ड द फेले ताज्जुब, वर्ब ऑफ वंडर. हम्म। सो सो इतने, अब जाहिर है, अब हमने पहले पहले उसको वर्ब को सीखा, फिर वर्ब सूर्य में. काफ की है। हाँ, सूर्य काफ, हाँ। सूर्य कहफ. अब सिर बही वास में. सो हम कहते हैं ना, माँ अजमल, क्या खूबसूरत. माँ अजमल फ्लावर को कहते हैं माँ अजमल जहरा, राइट. लाइक कितना, क्या खूबसूरत फ्लावर, राइट. ऐसे कहते हैं ना. सो उसको माँ को हटा के जो अजमल था उसको अजमिल कर दें, तो वो बन जाता है फेले वंडर, और उसके साथ बा लगा दें. सो माँ अबसर के क्या, क्या बसारत को हम कह सकते हैं, अबसर बही भी, राइट. सो इतनी इंट्रिकेसी है लैंग्वेज में कि हम्म। उसको तो सीखते ही रह जाएं, राइट. लाइक ग्रामर, जी लाइक जी। अब मैंने सोचा कि मुझे लाइक वर्ब भी आ गया है तो नाउन भी आ गया है, सब कुछ आ गया है. बट देन लाइक ऑन द डे ऑफ सूरह कहफ, जो कि हर जुम्मे को पढ़ी जाती है, हम्म। आई वाज स्टक ऑन लाइक द वन वर्ड. एंड देन उसको इन्वेस्टिगेट लाइक फौरन मिल गया. एंड
या बट वो द गाय ही इज रॉन्ग, राइट? अगर खाली आप अफसर लिखेंगे तो चैट जीपीटी को जब तक ये नहीं बताएंगे कि मुझे फेल वंडर के बारे में बताओ। हाँ वो नहीं, हाँ नहीं, मतलब मैं उससे कहता है मुझे खरीदनी है या मुझे यहाँ से मिल जाएगी, कुछ बताओ, तो उसने कहा हम लोग तो चैट जीपीटी यूज करते इस्तेमाल करते हैं। ही इज राइट, ही इज राइट के यानी कि ज्यादातर हैं। आपको हम कौन से पेज पे थे? 5 सूर्य वाक्य तो उधर है। आई लॉस्ट इट। आई थॉट इट 562, वाज 562। हाँ, या हाँ 562 ही थी ना। लेकिन ये तो सामिन, मेरे ख्याल में 6 समथिंग थी। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। हाँ हाँ सूरत हलीम रहमान, ये वाला हमारा चल रहा है। सही। सो या, सो बसर से वो भी याद आया, तो ही इज राइट कि लाइक लैंग्वेज जो है, एंड ही इज वेरी राइट कि जो अरबों को है वो अरबी नहीं आती। मेरे पास हाँ अभी कल ही एक लड़की आई है पढ़ने, जो कि खैर पाकिस्तानी उसकी ओरिजिन की, लेकिन पैदा वहां हुई है अगेन, और वो हाँ अरबी फुली बोलती है, बट स्टिल लाइक ग्रामर इज अ प्रॉब्लम फॉर देम, हाँ वेरी मच अ प्रॉब्लम, राइट? तो उसी तरह है जैसे हमें उर्दू, गांव में भी उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, राइट? बट हाँ, दे इफ दे डोंट गो टू स्कूल, उनको नहीं पता कि क्या क्या लिखा क्या हुआ है। दे डोंट नो। वो रीड नहीं कर सकते, वो लिख नहीं सकते, जुमला नहीं बना सकते उसमें, राइट? सो देयर आर मेनी थिंग्स, राइट? सो एनीवे, और दूसरी क्या, कुरानिक डिक्शनरी, तो आपको मैंने बताया ना कि मैं कुरानिक डिक्शनरी लिख रही हूँ। हाँ बताया था वो, कभी उसको कब तक हो जाएगी इंशाल्लाह कंप्लीट। मैं मेरे ख्याल में आपको भी एक आध 10 दिन उस कुरानिक डिक्शनरी के लिए लेने चाहिए छुट्टी, अच्छा। बिकॉज इट्स नॉट, मैंने पहले सोचा कि स्मॉल प्रोजेक्ट है, बट देन नहीं नहीं। जो मैं लिख रही हूँ दिस इज स्मॉल, लेकिन उसकी एडिटिंग एंड पब्लिशिंग, पब्लिशिंग तो चलें करवा लेंगे, लाइक फंडिंग इज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गिव मी the himmat and baraka. So that's not a problem, right? Publishing is not a problem. मैं जो लिख रही हूँ वो not a problem. Editing is a problem because the way I am writing it, I don't think everybody would understand उसको। और मुझे टाइप, अभी मैं ही सोच रही हूँ, अभी तो मैं हाथ से लिख रही हूँ, लेकिन उसको टाइप करना, आई डोंट वांट एनीबडी जो कि जिसने कभी कुरान सीखा ना हो, लाइक लाइक उस हाथ में नहीं दे सकते कि भाई ये कर दो टाइप। हम्म, या तो आई डू इट माई सेल्फ, दैट वुड बी अ बिग 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 अंडरटेकिंग, और फिर उसकी प्रूफ रीड भी वो ही बंदा करे जो कि इंटरेस्ट रखता हो कुरान में, राइट? सो इट वुड रिक्वायर अ टीम, नॉट लाइक पहले मैंने सोचा इंडिविजुअल कि नहीं, हाँ सही सही कह रहे हैं। सो इंशाल्लाह। खैर, जैसे जैसे अभी मैं जार कंप्लीट किया, मैंने सीन शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा। बस लेकिन एक बात है तारिक, अगर उस डिक्शनरी को हम प्रमोट कर सके फॉर एग्जाम्पल, और अगर हमने किसी से कहा कि तुम बताओ कुरान में ता के कितने लफ्ज हैं, हम्म। ता के कितने लफ्ज हैं कुरान में? 20। अब कौन बंदा ये होगा जो ये ना सोचे कि अगर 20 लफ्ज हैं तो मैं तो 20 लफ्ज सीख सकता हूँ? हम्म पॉसिबिलिटी है। हम्म अगर मैं कहूँ कि लफ्ज जाल के, लफ्ज जाल के भी 20 लफ्ज हैं। हम्म ता, सा, एंजाल, इसके अभी तक हम्म 20-20 लफ्ज हैं। रा के हम्म मुश्किल से कितने होंगे? रा के ज्यादा होंगे, चले जा के 40 हैं, जा के 40 हैं, रा के, एंड नथिंग इज मोर देन 100। अभी तक मैंने जो वर्ड्स किए हैं, जो कि 11-12 लफ्ज हो चुके हैं, उसमें कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जिसके 100 से ऊपर गए हों लफ्ज। तो अगर किसी को बता दिया जाए कि तुम्हें जिम करना है, और जिम के सिर्फ 80 लफ्ज पाए जाते हैं पूरे कुरान में, वो तो 2 दिन की बात है, वो बैठ के पूरे पूरे उस डिक्शनरी को देखेगा और कहेगा कि या आई नो। इजी अच्छा। नहीं हो जाएगा? एक एक अप्रोच इजी हो जाएगी ना। लोग समझते हैं कुरान मुश्किल है, बट अल्लाह ने कहा हम्म, कुरान बहुत आसान बनाया है।
and now I'm doing the dictionary. मुझे खुद लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी चीज है. So that will give you your meaning जो आप कह रहे हो ना. मसलन सूर्य कहफ जो है, अगेन दैट वाज लाइक एक 3 साल पहले पढ़ी होगी, आप लोगों के साथ पढ़ी थी, जिसमें हम वर्ब सीख रहे थे, राइट, रिमेम्बर. और बिल्कुल. अब हम पढ़ रहे हैं एंड देयर इज अ वर्ड जो एक ही लफ्ज है, उसके दो मायने. मसलन सूरज जो निकलता है उसको क्या कहते हो आप उर्दू में? तुलू होता है, तुलू, हाँ, तुलू, हाँ, उरूब, हाँ. राइट. और एक ही आयत में वो तुलू भी है, सूरज का निकलना भी, और एक तलाअत है कि आप देख रहे हैं झांक कर किसी चीज को, और वो सेम लफ्ज है. तो वो जो आपका कहना है ना कि एक लफ्ज के कितने मीनिंग हो सकते हैं, उसी आयत में तलाअत लाइक वही लफ्ज है, वही रूट, तो रूट है, हाँ, वही वही रूट है. रूट है. और वो सूरज भी तुलू हो रहा है, और वो बंदा जो है झांक रहे हैं उसके गार के अंदर, उनके लिए भी तलाअत है. एंड सूरज का तुलू होना भी तुलू है, तलाअत. Isn't that become interesting, right? Like, so that dictionary is capturing that, inshallah. सही. So और वहीं पे आपको मिल जाएगा कि भाई तोए का लफ्ज है तो तोए के कितने लफ्ज हैं, और तोए का लाइक इस एंड इट्स लाइक इन द हैंड में पतली सी होगी, बिकॉज अगर 100 लफ्ज हैं तो वो 3-3 पेजेस में आ जाएंगे, 4-4 पेजेस में आ जाएंगे, राइट. एंड देन इट वुड बी अ वेरी स्मॉल बुक, एंड हो सकता है लाइक देन पीपल वुड बी टॉट कुरान दैट वे, कि वो डिक्शनरी साथ रख के कुरान को पढ़ें, इंशाल्लाह दैट वुड हेल्प, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, इंशाल्लाह. सो जस्ट 10-12 दिन रखिएगा, हमेशा हर साल के अंदर. अगर इस साल पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जरूर. लेकिन मेरा उम्मीद है नवंबर तक, इंशाल्लाह. सही. सही है. तो अगले आयत भी इसका यही है, नंबर 4 जो है. अच्छा, इसमें ना इसी आयत में देखें, फुतूर का लफ्ज आखिरी आया है ना. जी जी जी. तो हम उर्दू में यूज करते हैं कि निगाह का फुतूर या ज़हनी फुतूर. जी जी जी. खलल के तौर से ही करते हैं, हलल मतलब. के तौर पे, हाँ. सही. लेकिन फतूर जो है उसको फतूर, खैर यहाँ पे आ गया, अभी मैं फे पे नहीं पहुंची, लेकिन अच्छा. मेरा दिल ये कह रहा है कि फतूर वो भी होता है जो इफ्तार करते हैं ना, उसको जो पैकेट लिखे हुए आते थे ना, सहूर एंड फतूर एंड इशाया, खाना, रात का अच्छा. खाना, फतूर जो है वो ब्रेक करना, राइट, इफ्तारी. सो ये वही वो भी लफ्ज है. तो वही है. अच्छा. मल्टीपल, हाँ, उस पे लिखा होता है पैकेट पे, जो हमारे वहां पे मिलते थे ना रमजान में. तो ये फतूर का पैकेट है, तो ये सहूर का पैकेट है, राइट. ये सहरी का पैकेट है, तो ये इफ्तारी का पैकेट है, राइट. तो या सो दिस इज लाइक मल्टीपल मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड. वो कैसे आए होंगे ये मुझे नहीं पता, अभी जहन पे ये आया है देख के. एंड देन द फितरा, राइट. फितरा, हाँ, फितरत. हाँ, वो फतूर, ये बिकॉज ये फा त्वा एंड रास इसका जो है रूट वर्ड है, गुड वर्ड है. जी. ठीक है. तो इट्स इंटरेस्टिंग, इजंट इट? बिल्कुल. सही. नेक्स्ट क्या है? ये भी इसी तरह की आयत है, तो हम इसे और कर लेते हैं. ठीक है, कर लेते हैं. हाँ, सुमर जेऊ, फिर पलट जाएगी आपकी नजर, ठीक. करतन ट्वाइस, अगेन एंड अगेन, राइट. यानी कि अगर आप देखोगे, फिर आपकी नजर जो है लौट आएगी. क्यों? हम्बल्ड. अब जब गौर करना है, लाइक आई मीन बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं गौर तो करना शुरू करो, राइट. और तुम्हारी नजरें खुद ब खुद हम्बल हो जाएंगी, और तुम परेशान हो जाओगे, फटीग हो जाओगे. हसीर का मतलब होता है फटीग हो जाओगे, लाइक परेशान हो जाओगे, यानी कि अपनी अपनी रिसर्च से कि क्या सुभान ताला. एंड यू नो व्हाट, लाइक खैर मैंने जो साइंटिस्ट हैं, जी. जो दुनिया की बड़ी कंट्रीज में, आखिर में जब वो कुछ अगर रिसर्च होती है,
और जब वो कहते हैं कि नहीं, एक ताकत है जिसने ये सब कुछ बनाया है, हमारा जो इल्म है, हमारी जो साइंस है, वो इसको नहीं पहुंच सकती, राइट। तो उन वाले साइंटिस्ट, और अमेरिका में पता है आपको कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च है उनके लिए ग्रांट होती हैं बड़ी बड़ी, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी। बट उनका मकसद कुछ और होता है, कि उनका मकसद ये होता है कि लाइक लाइक आई थिंक टू डेविएट और मिसडायरेक्ट, राइट। जहां पे जो साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंच जाता है और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है, उसकी ग्रांट फौरन उसकी खत्म कर दी जाती है, उसको उसकी जॉब से किक आउट कर दिया जाता है। दिस इज अ वर्ड, मैं निकाल के वो आर्टिकल आपको भेजूंगी इंशाल्लाह, मुझे मिल गया तो वो जो जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो इस नतीजे में पहुंचते हैं, और एज सून एज वो अपने रिसर्च पेपर में ये डालते हैं, उनका रिसर्च पेपर आगे जाने के लिए अलाउ ही नहीं होता, राइट। एंड दिस इज द आया विच इज सेइंग, तुम जितना ढूंढ लो, जितना कर लो, तुम्हारी आंखें फिर आखिर में हम्बल हो जाएंगी, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपने बिल्कुल वाकया बताया। he kept researching, and finally he said there is a khaliq, सही। it's a beautiful surah, right? surah mulk, yeah। but इसका जो वर्चू है कि वो कब्र के अजाब से बचाती है, आई थिंक इसको अगर हम गौर से पढ़ें तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज्यादा करीब हो जाएंगे, एंड ही वुड बी आवर फ्रेंड, राइट। हमारा जो ताल्लुक, ही इज अ वली, he himself said, right, he is a friend, he is a wali, and there are people जो जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला दोस्त समझता है। So again I was talking to somebody and they said like, okay, me Allah, like Allah's friend, and where do find that? I said हम सब अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं, अल्लाह हमें अपना दोस्त समझता है कि नहीं, this is a different story, but we can try to be friends with him, right। उनके गुड बुक्स में होना चाहिए, तो कोशिश करें, जैसे होता है ना, लाइक बचपन में अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल होते थे तो एक बंदा या बंदी कोई होती थी, वी वांट टू बी द फ्रेंड्स विद देम बिकॉज दे आर सो कूल, राइट। जी जी, राइट, सो वी वांट टू विन देयर फ्रेंडशिप। सो द सेम स्टोरी कि अल्लाह की फ्रेंडशिप हम कैसे विन कर सकते हैं, राइट। वी हाउ कैन बी वन ऑफ द फ्रेंड, राइट। वी कैन ट्राई, हम अपने आप को कह सकते हैं हम अल्लाह के फ्रेंड है, अल्लाह अल्लाह का मर्जी तो अल्लाह ही जानता है, राइट। बिल्कुल सही, तो यहाँ तक रखें आज। यहाँ तक चलें, ठीक है, गुड। ओके, दैट वाज अ गुड सेशन, इंशाल्लाह। people in the recording, I don't know, we go into discussion, that's this class is, right, this is not a very formal class, this is just like we enjoy the discussion, alhamdulillah। all right, चलें, तो सबको मेरी तरफ से सलाम दुआ दीजिएगा इंशाल्लाह। हाउ इज इरम दो, पहले मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर, ठीक ठाक है।